my YouTube channel, and today we are going to discuss about linear equation in one variable for class 8. So let's start it. First of all, we should know about what is algebraic expression. So what is an algebraic expression? Algebraic expression is the expression having constant and variables. You already know about constant and variables. Constant are those terms which are constant, like whole numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and variables are the terms that are changeable or that vary from question to question, like a, b, c, d, x, y, z, anything whatever you can assume for any number. तो आपको पहले ही पता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है. एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल पे कुछ रिलेशन होता है और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म. तो कांस्टेंट वो टर्म्स होती हैं जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, जैसे कि कोई भी नेचुरल नंबर्स हमारे पास हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5. और वेरिएबल वो टर्म्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है हर क्वेश्चन के लिए. जैसे आप किसी क्वेश्चन में x लेते हो, y लेते हो, z लेते हो, a लेते हो, b लेते हो, इस तरह से, है ना. इट कैन हैव मल्टीपल वेरिएबल्स एंड मल्टीपल पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जरूरी नहीं है कि वन ही वेरिएबल होगा. जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन करेंगे हम, तो बड़ी क्लासेस में आप जैसे जाएंगे तो आपको वहाँ पे 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, और बड़ी में जाएंगे तो और भी आपको मिल सकते हैं और उनकी पावर्स मिल सकती हैं, मल्टीपल पावर. जैसे अभी आपको सिर्फ x+3 इस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं और आगे आपको मिल सकते हैं x²+2x+3 = 0, like this. So we already know the below terms from previous class. Let's recall those terms. What are those? What is equation? So an equation is a condition on a variable. कोई भी हम वेरिएबल चूज करते हैं, अपनी एज्यूम करते हैं और उस पर हम कोई कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन. सपोज we say x+3 = 0, like this. And what is variable? A variable takes on different numerical values. Its value is not fixed. Variable are denoted usually by letters of alphabet such as x, y, z, l, m, n, p, etc. Okay, then an algebraic equation is an equality involving variables. हमें पता है कि algebraic equation जो होती हैं वो एक equality होती है. अब equality से आप लोग confuse मत रहिएगा. equality मतलब कुछ हमारे पास operations हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कुछ ऑपरेशंस हैं राइट हैंड साइड में, और दोनों के बीच में जो इक्वल का साइन है दैट इज कॉल्ड द इक्वलिटी. And it says that the value of the expression on one side of the equality sign is equal to the value of the expression on the other side, and we use for that LHS and RHS, left hand side and right hand side. For example, this 7x minus 9, this is the left hand side, and 16 is on the right side, and the equal sign in between these is called the equality. And similarly, in second example, 1.5 is on the left side of equality, and y by 1 minus 6 is on the right side of the equality. Okay. Now what we should know, what is linear equation in one variable. अब हमें पहचान होनी चाहिए कि वन वेरिएबल में इक्वेशन कौन सी होती है. We will restrict the above equation with two conditions, और इसको हम दो conditions में समझेंगे. First is algebraic equation in one variable. इसमें algebraic equation वो जिसमें कि वेरिएबल एक ही होता है, मतलब जो अल्फाबेट्स हैं जैसे x, y, z, a, b, c, d, उनमें से एक ही अल्फाबेट को हम उसमें यूज कर रहे हैं. Then we can say that we are using one variable only. And variable will have power 1 only. और जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम x² 5x² = 25 ऐसा लिख लेंगे तो उसमें पावर क्या हो जाएगा, x का पावर हो जाएगा 2, और we can say that degree of 2 और degree of this equation will be 2. तो 2 डिग्री हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी. इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि पावर भी वहां पे 1 होना चाहिए. फॉर एग्जांपल
Example first, that is 5x is equal to 25. We know that we have only one variable in that, that is x, and x is having power only 1. And in the second example, we are using that 2x minus 3 is equal to 92x. Please don't be confused that x is 2 times here. अब इसमें confusion वाली कोई बात नहीं है कि x यहाँ पे 2 बार आया, लेकिन x एक ही वेरिएबल है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए आगे की बातों पे बात करते हैं। Linear equation is an equation which is in the form of ax plus b is equal to 0 or ax is equal to b etc. तो इसकी जो हम लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, इसकी स्टैंडर्ड जो फॉर्म हम बना सकते हैं वो हो सकती है हमारे पास ax plus b is equal to 0। a यहाँ पे कोई भी हमारा नेचुरल नंबर रहेगा और b हमारा कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा, और x हमारा जो है वो वेरिएबल है, उसकी भी वैल्यू कुछ लास्ट में आप सॉल्यूशन करके निकालेंगे। इसी तरह ax is equal to b, इसमें भी हमारे पास दो कांस्टेंट टर्म है, एक a और एक b, और x जो है हमारे पास वेरिएबल टर्म है। where a and b is real number, x is variable of power 1. I think it's clear now. So let's move to the next. Solving equation which have linear expression on one side and numbers on the other side. अब हम ऐसी linear equations को solve करके देखेंगे जिसमें एक साइड में हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन होगा और दूसरी साइड में हमारे पास कोई नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 2x minus 3 is equal to 5, 3x minus 11 is equal to 22। ये दो एग्जांपल हम ले रहे हैं। अब इसमें देखिए एक साइड में क्या है, हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक साइड में, और दूसरी साइड में हमारे पास क्या है, कोई नंबर है। सो हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? वी विल यूज ट्रांसपोजिंग मेथड फॉर दैट। व्हाट इज ट्रांसपोज? चेंजिंग द साइड ऑफ the number to the side where all numbers are present. We know the sign of the number changes when we transpose it to the other side, or you can say when any number will jump over the equity, then it will change its sign. तो हमें पता है कि जब भी हम किसी नंबर को इधर से उधर ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या करेगा, अपना साइन चेंज करेगा। और नाउ you will have an equation have variable on one side and number on other side. We will add subtract on both the sides to get single terms. तो भी हमारे पास दो मेथड हो गए। एक हमारे पास ट्रांसपोजिंग होता है जिसमें कि एक टर्म होती है वो दूसरी साइड चली जाती है और वहां जाके उसका साइन चेंज हो जाता है। इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, हम वैल्यूज पुट करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड्स में टू गेट सिंगल टर्म। We add subtract on both the sides to get single term। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको अभी अगले क्वेश्चन में हम जानेंगे। Now divide और multiply on both the sides to get the value of the variable। और इसी में जो हमारा सेकंड मेथड है, इसी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ साथ हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, एंड दैट डिपेंड ऑन द कंडीशन, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। So let's have an example that is 2x minus 3 is equal to 5। What we will do first ट्रांसपोजिंग 3 टू अदर साइड। हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर जा रहे हैं, तो इधर जो 3 है वो माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो वी विल हैव 2x is equal to 5 plus 3, or we can say 2x is equal to 8। now we can divide both side by 2, and if we divide 2x by 2 then we will get x, and if we will divide 8 by 2 then we will have 4 there। Let's take another example for that। y plus 3 is equal to 10। So given y plus 3 is equal to 10, now we will subtract 3 from both sides, or we can write this as by subtracting 3 from both sides we get y plus 3 minus 3 is equal to 10 minus 3। अब हमने ये चीज अप्लाई की कि हमने दोनों तरफ क्या किया है, 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साइड से, तो y plus 3 में हमने minus 3 डाला और 10 के साथ भी हमने minus 3 डाल दिया। So we will have 3 cancel with minus 3 plus 3 minus 3 cancel out, and 10 plus minus 3 we will get
7. So we get y is equal to 7 here. Okay. So we may have some word problem on simple linear equation in one variable. हमारे पास word problem भी हो सकती हैं linear equation के ऊपर. कैसे हो सकती हैं? Linear equation can be used to solve many word problems. The procedure is simple. First read the problem carefully. Write down the known and unknown. अब इसमें मैं ये सिर्फ linear equations के लिए नहीं, सभी चीज़ों के लिए आपको कहना चाहूँगा. ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो उनको क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे होते हैं, उनको पता भी होता है कि कैसे सोल्व करना है, बट वो क्वेश्चन को ही अच्छे से नहीं पढ़ पाते. तो बेटा ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है. अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 या 3 बार उसको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आप उसका सोल्यूशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे. किसी भी चैप्टर के लिए, जरूरी नहीं है कि इसी चैप्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ, किसी भी चैप्टर के लिए. सो फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम केयरफुली and write down the known and unknown. What is known and unknown here? Known जो होता है वो हमारे पास जो भी कांस्टेंट उसमें बात की गई है उसकी बात करेंगे, एंड अननोन को हम कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं, a b c d x y z whatever we like. So assume one of the unknown to x and find the other unknown in term of that. हमें क्या करना है, एक टर्म को हम x एज्यूम कर लेते हैं और दूसरी जो अननोन टर्म है उसको फिर उसी की कंडीशंस पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. क्रिएट द लीनियर इक्वेशन बेस्ड ऑन द कंडीशन गिवन. और जो हमारे पास जो भी कंडीशन उसमें दी गई है, कुछ एडिशन हमें करना है, कुछ सब्ट्रैक्शन हमें करना है, किसी को ट्वाइस करना है, किसी को थ्राइस करना है, हम उसके बेसिस पे वो लीनियर इक्वेशन वहाँ पे तैयार कर लेते हैं. क्रिएट द लीनियर इक्वेशन बेस्ड ऑन द कंडीशन गिवन, देन solve them by using the above method. अभी हमने दो मेथड्स की बात की, एक ट्रांसपोजिंग वाला था और दूसरा क्या था, हम दोनों तरफ एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके उसको सेम करना है दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, उसको भी हम सोल्व कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स मूव. एग्जांपल, व्हेन 5 is added to 3 more than a certain number. अब हमें क्या सोचना है, इस सिचुएशन को सोचना है. क्या है सिचुएशन हमारे पास, when 5 is added to 3 more than a certain number. जब 5 को किसी नंबर के थ्राइस में से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. ठीक है, किसी भी नंबर के हम क्या कर रहे हैं, थ्राइस में ऐड कर रहे हैं. द रिजल्ट इज 19. सो व्हाट इज द नंबर? सॉल्यूशन कैसे करेंगे? लेट्स सर्टेन नंबर विद x अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी है. हमें क्या करना था, उस नंबर का थ्राइस करना था, तो थ्राइस किया, 3x हो गया प्लस 5, उससे 5 ज्यादा है तो हमने क्या किया, उसमें 5 ऐड किया, एंड इज इक्वल टू 19. सो वी कैन सोल्व फॉर x. और इस इक्वेशन को फिर हम ट्रांसपोजिंग या फिर हमारे इक्विटी वाले मेथड से किसी से भी सोल्व कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. We have one more example for that. That is, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? And it's not compulsory that we are using the things only given there in any question. So we have to use some concept that we already know. अब ऐसा नहीं है कि जो कंडीशंस क्वेश्चंस में दी हैं वही सिर्फ हम यूज कर सकते हैं. कुछ कंसेप्ट ऐसे भी आपको यूज करने पड़ेंगे जो आपको पहले से पता होंगे, जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़े होंगे. तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे द अननोन आर लेंथ एंड ब्रेथ. इसमें लेंथ और ब्रेथ दी नहीं है आपको, सो लेट द ब्रेथ बी x. हम ब्रेथ को क्या कर लेंगे, x एज्यूम करेंगे. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या है. एक सेकंड लाइन अगर आप पढ़ेंगे, इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. इसकी जो लेंथ है इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से भी 2 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, देन एज पर क्वेश्चन द लेंथ विल बी 2x प्लस 2 मीटर. ओके, ये कंडीशन यहाँ पे दी गई थी कि इसकी लेंथ जो है, इट्स लेंथ इज 2 मोर देन, इसकी लेंथ जो है वो 2 ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से, और ब्रेथ हमारी क्या है, x थी, तो सो हमने 2x प्लस 2 लेंथ हमने निकाल ली. नाउ यू हैव टू यूज योर कंसेप्ट फॉर पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल.
So what is the perimeter of a rectangle? Perimeter of rectangle is 2 into L plus B. अब ये हमारे पास पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर जो है वो है 154 मीटर. So we have perimeter equal to 2 into L plus B as per question and 154 meter. Sorry, 2 into L plus B as per our concept and 154 meter as per question. So we will just put an equity sign between these and 2L plus B is equal to 154 meter. Then we will solve it. Let's do let's put the value of length and breadth there, and the value of length was, what was that, 2x plus 2, and the value of breadth was x, so we have put it that value. And first of all we will solve the bracket. In bracket we have 2x and one more x is there, so it becomes 3x, and 2 is there, so 3x plus 2, and 2 is in the multiplication of that is equal to 154. Now we will solve the next part of it, dividing both side by 2. So from left hand side 2 will be cancelled out because 2 is in the multiplication and we are dividing that by 2, and 154 को अगर 2 से डिवाइड आप करेंगे तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 77 उधर से आ जाएगा. सो 3x plus 2 is equal to 77 हमारे पास आएगा. अब देखिए इधर 3x plus 2 इस टर्म को कम करने के लिए हम इस पे ट्रांसपोजिंग करेंगे 2 का. सो ट्रांसपोजिंग 2 टू राइट हैंड साइड वी ऑब्टेन 2 को अगर ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड में तो वहाँ पॉजिटिव है, इधर लेफ्ट में पॉजिटिव है तो राइट में आने के बाद वो क्या होगा, नेगेटिव आपका हो जाएगा. तो वो नेगेटिव हो रहा है इधर. देन यू विल हैव 3x is equal to 75. Now we will solve the remaining part of that. Dividing 3 on both the sides we will get, if 3x is divided by 3 then we will get x, and if 75 is divided by 3 we will get 25. So breadth is 25 here, and from the equation given on the second line of solution we will solve it for length also. Length is equal to 2x plus 2, so we will put the value of value of x here. So 2 into 25 plus 2 is equal to 52 meter. Hence the breadth and length of the pool are 25 meter and 52 meter respectively. Okay, I think it's clear to you. Now let's move to the next. What is that? Solving equation having वेरिएबल ऑन बोथ द साइड्स. अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसमें कि वेरिएबल हमारे पास दोनों साइड्स में अवेलेबल होंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज 2x minus 3 is equal to 6 minus x. So first of all we will try to reduce these terms by reducing the value of numbers here. So transposing 3 to right hand side and x to left hand side, we are just doing one thing, that we are taking वेरिएबल ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन वन साइड. सो वेरिएबल जो है उसको एक साइड में इकट्ठा कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो कांस्टेंट है उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं. वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 2x minus x is on their right hand side, so it will become plus x if it will come to the left hand side, and we have 6 on right hand side and minus 3 on left hand side. So if minus 3 will move to the right then it will become positive, then we will have 3x is equal to 9. Now we can solve it for further. Dividing both side by 3 we will get 3x divided by 3 we will get x, and if 9 is divided by 3 then we will got answer 3x is equal to 3 is our required answer. Okay, so how we can reduce equation to simpler form. So we will learn how to reduce equation to simpler form. You will find many situations where the linear equations may be having number in denominators. कई बार क्या होगा, कुछ आपके पास फ्रैक्शंस आ जाएंगे वहां पे p by p की फॉर्म में आपको दिखाई देंगे. फ्रैक्शंस आपको दिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ होगा. We can perform the below step to simplify them and solve it. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे. क्या कर सकते हैं, टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द एलएचएस एंड आरएचएस.
हम LHS और जो RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी आपका गिवन है डिनोमिनेटर, उनका क्या लेंगे पहले एलसीएम। और फ्रैक्शंस में ये आप देखिए 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फ्रैक्शंस में आपने ये पहले से सीख लिया है कि कैसे हमें लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। सो मल्टीपल द एलसीएम ऑन द बोथ द साइड्स, और एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को हम दोनों साइड्स में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल रिड्यूस द नंबर विदाउट डिनोमिनेटर एंड वी कैन सॉल्व यूजिंग द मेथड डिस्क्राइब। अब एलसीएम को दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर था वो रिड्यूस हो जाए और डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जो मेथड हमने अभी सीखे थोड़ी देर पहले उसी से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। We are going to solve this equation, that is 8x plus 4 is equal to 3 into x minus 1 plus 7. If you are having solution of that, then you can send that in comment box also. अगर आपका सोल्व हो गया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। So first of all, what we have given, that is at 8x plus 4 is equal to 3 into x minus 1 plus 7. By removing bracket from right hand side we get, पहले हम right hand side में से bracket को ही remove करेंगे, 8x plus 4 and multiply 3 with x we get 3x and 3 with minus 1 we get minus 3 plus 7. So we will move to the next step. By transposing 3x to LHS we get, अब हम क्या कर रहे हैं, वही जो पहले हमने किया था, हम वेरिएबल्स को एक साइड में लेके जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो हमारे कांस्टेंट हैं उन टर्म्स को कहाँ पे हम राइट हैंड साइड में कर रहे हैं। So 8x minus 3x plus 4 is equal to minus 3 plus 7. So 8x minus 3x plus 4 is equal to, we have solved the right hand side, minus 3 plus 7 we got 4. Now by transposing 4 to RHS we get, अब 4 जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है उसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज अगर करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। वी विल गेट 8x minus 3x is equal to 4 minus 4. Now 8x minus 3x is equal to 5x and 4 minus 4 is equal to 0. We get 5x is equal to 0. अब कोई नंबर है जो 0 के इक्वल है, अगर उसका 5 टाइम्स आप लोगे तो वो भी 0 के इक्वल ही आएगा x, और सिंपली अगर हम इसको सोल्व भी करेंगे, 5 is in the multiplication of x and if we will transpose that to the right hand side we will get 0 by 5. After dividing both sides by 5 we get 5x by 5 and 0 by 5. From left hand side we will get x is equal to 0 by 5 or 0 by 5 is equal to 0, or the value of x is 0. Hence you can solve such type of situation. And let's have one word problem there. A positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers become twice the other new number. What are the numbers? अगर आप इसका सॉल्यूशन कर पा रहे हैं तो साथ के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अब देखिए एक पॉजिटिव नंबर है, अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बाइलिंगुअली मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। कोई एक पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स है किसी दूसरे नंबर का, मतलब कोई एक पॉजिटिव नंबर आपके पास है वो 5 गुना है दूसरे नंबर से। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अब दोनों नंबर में अगर 21 ऐड किया जाए तो देखिए पहली लाइन को ही पहले समझ लेते हैं। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर से कितना है, 5 टाइम्स है। मतलब एक अगर 1 है तो दूसरा 5 है, एक अगर 2 है तो दूसरा 10 है, इस तरह से हमारे पास 5 टाइम्स है। तो हमें पता ही नहीं नंबर क्या है, तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर इज x, so another number will be 5x. And from second line we get, if 21 is added to both the numbers, if we add 21 to the x and if we add 21 to the 5x, then one of the new numbers becomes twice the other new number. अब जो बड़ा नंबर है वो डबल रह गया है किसका, फर्स्ट वाले नंबर का। व्हाट आर द नंबर्स, दोनों में 21 ऐड किया है, मतलब x प्लस 21 हमने किया है, 5x प्लस 21 किया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो 5x प्लस 21 है वो डबल है पहले से। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को अगर डबल कर देंगे, जो हमारा x प्लस 21 है, तो हमारे पास दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल में आ जाएंगे।
So let's have a solution for that. Let the given positive number is equal to a. आप x ले सकते हो, a ले सकते हो, b ले सकते हो, कोई भी अल्फाबेट जो आपका मन करे यूज कर सकते हैं आप. So therefore another number which is 5 times of its will be 5a. Then now after adding 21 to both the numbers, first number will be a plus 21 and the second number will be 5a plus 21. According to the question, one new number become twice of the other new number. Therefore, second number is equal to 2 multiply first number. And now we will apply this on our equations. It is that 5a plus 21 is equal to twice of a plus 21. So we will solve the right hand side first. And we will remove bracket of that. 2 multiplied by a plus 2 multiplied by 21. So 2a, it becomes 2a plus 42. 5a plus 21 is equal to 2a plus 42. By transposing 2a to left hand side, we get 5a plus 21 minus 2a is equal to 42. Now, after transposing 21 to right hand side, we get 5a minus 2a इज इक्वल टू 42 माइनस 21. हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने जो इक्वेशन थी उनको देख लिया कि क्या हमारे पास बनेगी. उसके बाद जो हम पहले सोल्व कर रहे थे वैसे ही हम सोल्व करते हुए आ रहे हैं. सो लास्ट में हमारे पास क्या बचा है, 3a इज इक्वल टू 21 एंड a इज इक्वल टू, इफ आफ्टर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, अगर हम दोनों साइड को 3 से डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू हमारे पास 7 आ जाए. ठीक है, अब एक नंबर हमारे पास क्या हो गया, एक नंबर हमारे पास 7 और दूसरा उसका 5 टाइम्स है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 35. सो thus required numbers are 7 and 35. So let's have another equation. 5x plus 3 divided by 4 minus 2x minus 4 divided by 3 is equal to 5. Now we have some fraction on that, or we have denominator on terms. So what can we do? We have learned that we will take the LCM of that, and what will be the LCM of 4 and 3? That is 12. So we will multiply both the sides, left hand side as well as right hand side, with 12. If we have more than one terms in left hand side or right hand side, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा terms हैं left hand side में या right hand side में, तो हम सबको multiply करेंगे. जैसा कि आपको दिख रहा है 5x plus 3 divided by 4 and rectangular bracket closed multiplied by 12. ये first term हमारी है वो 12 से multiply होगी, minus rectangular bracket into circular bracket 2x minus 4 circular bracket closed divided by 3 rectangular bracket closed multiplied by 12. अब ये second term है उसको भी 12 से multiply किया is equal to 5 by 12, sorry 5 multiply 12. तो हमने सारे के सारे जो लेफ्ट हैंड साइड वाले उनको भी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया 12 से, और राइट हैंड साइड वाले भी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया 12 से. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 3 into 5x plus 3 minus 4 into 2x minus 4 is equal to 60, and we will solve it. First of all, we will we have 3 into 5x 15x plus 3 into 3 9 minus second term 4 to the 8x minus 4 multiply minus 4, and we will get positive 16. As you have already talked about the integers, so I need not to explain why minus 4 multiply minus 4 is equal to plus 16. So all we have is equal to, in the right hand side we have 60. So after solving this, we will have 7x plus 25 is equal to 60. Now we will solve it further. 7x is equal to 60 minus 25, and 7x is equal to 35. Then x is equal to 35 by 7, and we will have value of x is equal to 5. I think you got it. So without wasting time, this is the homework for you. आप इसको solve करके मेरे chat box में upload कर सकते हैं. So आई थिंक आपको आज की क्लास पसंद आई, और आप इसको लाइक करेंगे. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. थैंक यू.